Hello everyone, this side your faculty for business correspondence and reporting. This is Rozy Sharma and today we are starting with a topic that is resume writing. Word resume that I have used right now. Have you ever heard? नहीं सुना? CV word कभी सुना हो? बायोडेटा कभी सुना हो? मे बी आप लोगों के यूज के शायद ये टर्म्स अभी तक नहीं रहे हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इनका यूज हुआ ना हो. You tell our students and learning and studying on the expenses of your parents, your guardians, but in the further life you need to earn, you need employment, and for the employment you need to draft your resume, you need to draft your CV, you need to draft your biodata. And how to draft it, this is what we are going to learn in our today's class, that is about resume writing. So before proceeding further with this topic, we are required to understand the concept of resume, what actually the resume is, right? So resume is a summary of the qualities and qualifications of a person. Suppose you are looking for a job. You cannot go from person to person giving detailing of your qualifications. मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी schooling यहाँ से है, I'm proceeding this, I will do this. These all things, it is not possible for a person to present in front of a employer every now and then when you are going to the different people. So in that case, what is required in that case, a written detailing of all these things is required, that is specified under the heading resume, CV or biodata, right? It is a brief record of one's history and qualifications prepared by an applicant for a job. You are applicant for a job. You are looking for a job, and to the employer, you are required to present your complete personality. You are required to present your complete character, right? So along with that, you are also required to add up your detailing of the qualifications. That is the basic thing. So all these things are cumulated in your resume, right? It is an inventory of the applicant's personal detail, education, training, experience and non-experience. All these 3 points can give you the description of what actually the resume is. Resume is summarization, it is a brief record, and it is the inventory that provide the employer that who you are, which all qualifications you have, what you can do, and what are your potentials and what are your skills, right? Now, this resume, this word resume is little bit different from biodata and CV. Though in our daily life we consider these all 3 terms synonymous, but they are not. There is a bit of difference in all these 3 terms. Biodata, CV and resume are little bit different from each other. Let us try to understand this difference also. First of all, I am talking about biodata. What is biodata now? Biodata is an obsolete term that is used to emphasize on personal details. Biodata is the record that emphasizes on your personal details rather than emphasizing on your professional abilities, right? Here you emphasize on the personal details like your date of birth, like your marital status, like your gender, like your nationality or your address, etc., right? You must have seen that in your homes, your elder brother or sisters might be there. When we prepare their matrimonial profile, so there we are required to provide the details of their personal attributes, right? So in that case we use the term biodata. कहते हैं ना आप अपना बायोडेटा भेज दीजिएगा. वहां पर हम क्यों नहीं कहते कि आप अपना रेज्यूमे भेज देना, आप अपना सीवी भेज देना. हम मैट्रिमोनियल के केस में जनरली क्या बोलते हैं, आप अपना बायोडेटा फॉरवर्ड कर देना. क्यों? क्योंकि जो बायोडेटा होता है दैट एम्फेसाइज ऑन योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, राइट? If I talk about CV now, what is curriculum vitae? This CV is a Latin expression, means the course of your life. Course of your life, it means it is all about your personal as well as your professional elaboration, right? It is a long and more detailed thing as compared to the biodata.
and it is common for academic and research jobs and fellowships, and it is detailed account of all the papers published, research projects you have completed, you have undertaken, adding up with the bit of your professional attributes and your personal attributes. So it is a kind of a combination, you can say, more focusing on your professional things and less focusing on your personal attributes, right? Now if I talk about resume, अगर मैं particularly यहाँ पर resume की बात करूं, तो if I talk about resume now, what it does, it focus more on skills and knowledge, right? It focus more on skills and knowledge and it stands totally different from biodata. Biodata से आपका ये totally different है, क्यों? In biodata we are focusing on your personal things, and in resume we are focusing on your skills and knowledge, right? It contains a summary of educational qualification. Summary of educational qualification. Glance इसमें भी हमें मिलती है आपकी qualification की, आपके work experience की, but not totally focused on that. Includes employment history of the candidate. It indicates the skills and professional affiliation of the applicant. It is written in a formal and objective manner, and it is suitable for any position and for almost all types of organization. तो अब इन तीनों डिफरेंस को पढ़कर हम क्या समझते हैं कि अगर हम किसी कॉर्पोरेट फर्म में, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने जा रहे हैं और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी डिटेलिंग ड्राफ्ट करनी है, तो वी कैन नॉट गो फॉर बायोडेटा, वी कैन ईदर गो फॉर सीवी एंड रेज्यूमे, एंड इन दैट केस द रेज्यूमे is the most appropriate one because it focuses on your skill potential, your working experience, your work skill, your qualifications and all, rather than focusing on your personal details, right? So that's why we are learning this skill of writing the resume. Now here we are having the steps in resume writing. What are the steps involved in resume writing? बात तो कर ली हमने कि resume होता क्या है, पर लिखें कैसे? What are the steps involved? What you have to do, अगर आपने किसी का भी एक प्रोफाइल रेडी करना है, you need to collect the facts related to that person. You need to have the complete information related to that person. This is the first point you have to do, that select all the facts that will help the reader to evaluate you. That will help the employer to judge you that which kind of person you actually are, right? Second thing, organize the facts under appropriate headings and subheadings. What you are supposed to do? You are required to organize the facts under the proper heading and subheadings. यानी आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है 6 साल का, तो आप उसको वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग के अंदर ही लिखेंगे. आपने कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसको आप अचीवमेंट हेडिंग के अंदर ही लिखेंगे. ये आपके रेज्यूमे में एक step है that you should know that where which thing should be presented, right? What is the third thing over here? List the facts in an interesting and effective manner. आपने चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है? Interestingly or effectively. It should not look messed up. Each and everything should be clearly mentioned under the proper heading. In education, it includes all the institutions you have been the part of. It includes the dates, the years of your passing. It includes different degrees and the subjects of study. जब आप अपने क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपको मेंशन करना है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से पास्ड आउट हो, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से बोर्ड का आप पार्ट रहे हो. आपको ये भी मेंशन करना है कि आप कौन से ईयर में पास्ड आउट हो और आपकी स्कोरिंग और आपकी परसेंटेज एटसेट्रा वहां पर क्या रही. Apart from that, in job experience, you have to specify the firm, places, dates and duties, which all responsibilities you have fulfilled there, which all duties you were shouldered with, and what was your duration, for how long you have worked over there. This is you are required to specify in your work experience.
Apart from that, you can also write about the extracurricular activities that reveals your personal interest and your qualities and your skill. आप इसके अंदर अपनी हॉबीज को, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज जिनमें आप इन्वॉल्व रहते हो उनको भी एड ऑन कर सकते हो, ताकि एक पर्सन आपके कैरेक्टर को एनालाइज कर सके. इसके अलावा सेलेक्ट द राइट रेफरेंसेस टू मेंशन, कि आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपका क्रॉस वेरिफिकेशन कहां से किया जा सकता है या किसकी रेफरेंस पे आप जॉब सीक कर रहे हो. दैट शुड बी मेंशन्ड इन द रेज्यूमे अंडर द हेडिंग रेफरेंसेस. Then you have to also provide the accurate mailing address, telephone numbers and job titles, right? आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कैंडिडेचर एम्प्लॉयर को सुटेबल लगता है तो वो आपको किस नंबर और मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकता है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर. एक फॉर्मेलिटी हम इसमें और भी करते हैं, स्टेटिंग अवर करियर गोल्स. व्हाट आर योर करियर गोल्स? पर्सनल ग्रोथ एंड अर्निंग a good amount of money with the financial interest. It should be mentioned in your career goals, right? Short term and long term goals. But make sure not to use personal pronouns like I, we. Most recruiters prefer one page resume for entry level positions. आपका resume बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. It should be brief. It should be crisp. It should have all the information related to you. ठीक है, कम में ज्यादा बताना है, पेजेस नहीं भरने हैं. दिस इज नॉट योर आंसर शीट वेयर यू विल गेट द मार्क्स फॉर फिलिंग अप द पेपर्स, राइट? Resume should be brief and it should be crisp also. Now, after understanding what all should be there in your resume and how the things should be organized, let us talk about types of resume, different type of resumes to be presented to the different kind of employers for the different types of job, right? First of all, let us talk about the chronological resume. होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. एक हमारा chronological resume, एक हमारा functional resume और एक हमारा combined resume. ठीक है, these are the 3 types of resume that I am talking about. First of all, I am talking about the chronological resume. अभी जो chronological resume है, इसको हम conventional style resume भी कह सकते हैं, old style resume, जैसे हमारे पेरेंट्स ने कभी अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, यानी that is not updated up to the current style of market, right? So these are the conventional style resume. These begin with your personal details and end with your references. एक अभी हमने सेकंड पॉइंट कवर अप किया था ना ऊपर डिटेलिंग में, that we should know how to organize the data. डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो हमें आना चाहिए. तो ऑर्गेनाइज करने में डेटा में हम क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनल डिटेल से शुरू करते हैं और रेफरेंसेस पर आकर खत्म कर देते हैं. देखो, अगर आप अपनी लोअर क्लासेस की बात करो तो वहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे ही सिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पर ये चीज हमने ध्यान रखनी होती है कि हमारे रेज्यूमे में होना क्या क्या चाहिए. टिल अवर क्लासेस 11th एंड 12th वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ओनली द कंटेंट ऑफ अ रेज्यूमे. बट अब जब आप फील्ड में उतर ही चुके हैं, जब आपको आज से 1-2 साल बाद अपनी जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए जाना ही है, तो क्यों ना आप मार्केट में अपडेट हो जाएं, क्यों ना आपको पता चल जाए कि उस रेज्यूमे, वो बायोडेटा जो मैं अपनी 11th और 12th में पढ़कर आया हूं या आई हूं, उसके अलावा भी स्टाइल्स ऑफ रेज्यूमे हैं जो कि एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करते हैं. तो जो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होता है वो आपकी पर्सनल डिटेल से शुरू होता है और रेफरेंस के साथ खत्म हो जाता है. इट गिव्स नो स्कोप टू बिगिन विद कैटेगरी टू बी हाईलाइटेड. ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का अपना ही एक स्ट्रक्चर है, अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीरीज है जहां पर आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते. सपोज कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है बट मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे क्या कहता है कि पहले ये बताओ पढ़े कहां से थे, उसके बाद बताओ कि आपके अंदर क्या स्पेशल है. मैं हाईलाइट करना चाहती हूं कि मेरे ये स्किल्स हैं, मेरे ये पोटेंशियल हैं जो आपकी इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे डज नॉट प्रोवाइड यू स्कोप टू हाईलाइट द थिंग्स दैट यू वांटेड बिकॉज इट गोज विद द सीरीज दैट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, राइट? Now let us talk about the functional resume. What are your functional resume? They emphasize on skill and accomplishments. क्या नहीं लगता आपको ये आजकल का resume है? Right?
What actually matters? Degrees matter, but your skill is equally important, and this is where the functional resume are important, because they emphasize on your skill and your achievements, and they give you the scope to begin with the category to be highlighted if it is related to your skill. क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे आपको आपका स्किल हाईलाइट नहीं करने देगा, बट फंक्शनल रेज्यूमे प्रोवाइड यू द स्पेस टू हाईलाइट योर स्किल्स, टू हाईलाइट योर पोटेंशियल, रेदर देन गोइंग विद द सीरीज, राइट। अब अगर मैं थर्ड टाइप ऑफ रेज्यूमे की बात करूं, इन दोनों से अलग, जो कि है कंबाइंड रेज्यूमे, एंड दिस रेज्यूमे फीचर्स बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल रेज्यूमे, दोनों के फीचर्स का यहां पर कॉम्बिनेशन है, एंड इट गिव्स कंप्लीट स्कोप टू हाईलाइट एंड स्टार्ट एज पर योर प्रायोरिटी। कोई सीरीज का यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन को ही हाईलाइट करना चाहते हो, स्टार्ट विद इट। आप अपने स्किल को हाईलाइट करना चाहते हो, स्टार्ट विद इट। और इन दोनों के अलावा अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो, अगर आप गॉड्स चाइल्ड हो, आपको कोई ऐसी अचीवमेंट मिल गई जो कि आपको लगता है कि इट कैन हेल्प मी टू गेट द जॉब, तो आप उससे भी स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और ये स्कोप आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड रेज्यूमे, राइट। सो वी हैव कवर्ड अप 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे, chronological or the conventional, which provide no scope to highlight your skill. We have talked about functional resume where you can highlight your skill. We have talked about combination resume which provide you the scope to highlight the things as per your choice, right? अब हमने जब types of resume पढ़ लिए तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि resume में होता क्या क्या है। What are the contents of resume? Again, आपने अब तक ड्राफ्ट नहीं करे, पर आपने देखा है कि how the resume help you to provide your briefing to the employer. So वो जो सब कुछ आपके एम्प्लॉयर आपसे जानना चाहते हैं और आप उनको बताना चाहते हैं, that is to be in the content of a resume. What is the first thing over here? It is about the personal details. You are required to specify your personal details in your resume, including your full name, your date of birth, your marital status, your address, your contact number, your religion, your sex, your nationality, and all the languages you know. And this should be in your personal details, right? Languages known को आप बाद में भी add on कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो languages होती है ना, ये आपके एक skill और potential को भी कहीं ना कहीं enhance करती हैं, right? तो languages को आप बाद में अपनी qualities में add on कर सकते हो। Personal details में you are required to provide your full name. Your father's name or husband's name can also be added. Your date of birth should be there, right? Contact number should be there. And your address should be there. Your marital status should be there. It should include your religion, your sex, and your nationality also, right? Now, moving on from the personal details, we are having the second thing, that is the career objective. हम रेज्यूमे में अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के बाद अपने करियर ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करते हैं, और अगर फ्रेंकली बताऊं तो इसमें हम 90% झूठ लिखते हैं। मैं ये करना चाहता हूं और मैं वो करना चाहता हूं, एक्चुअली में वी डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट वी स्पेसिफाई इन अवर करियर ऑब्जेक्टिव, बट जॉब चाहिए, मजबूरी है, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। सो करियर ऑब्जेक्टिव इंडिकेट योर फोकस, इट इंक्लूड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव बट नॉट योर पर्सनल गोल्स, राइट। आपने अपने करियर ऑब्जेक्टिव में उन चीजों को ऐड ऑन करना है जो कि ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल हो, बट आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होने चाहिए। आपके पर्सनल गोल्स को पूरा करना किसी फर्म का काम नहीं है। They will hire you only if you are fulfilling their objective. So your objective should be circled around the objective of a firm, right? Avoid using again the pronouns like I and do not give any vague statement. Unclear कुछ नहीं लिखना, जिस चीज को लेकर आप specified हो वो आपने वहां पर mention करना है, right? Now let us talk about the educational details that you are required to specify in your resume.
You are required to add up the degree, you are required to add up any diploma course you have done, you are required to add up the certification course, any grades, any division, all these things should be mentioned in your educational details. यानी आपकी achievements भी इसके अंदर आ गई, right? It should include formal and non-formal achievements like seminar or the conferences you have attended. ठीक है? Or apart from that, it should start with the recent qualification and work backward. Right? आपने लेटेस्ट क्या किया है वहां से स्टार्ट करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अपनी क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करनी है. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइमिंग. राइट? आपने 10th से, हम जनरली 10th 12th की डिटेल्स भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं, यानी कि आपके सेकेंडरी एग्जाम और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स. इसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आप एमबीए तक पहुंच गए, आपने सीए कर ली, तो आप पहले 10th और 12th को हाईलाइट ना करके अपनी उन क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करोगे जो आपने रिसेंटली स्कोर अप करी हैं. आपने रिसेंटली अभी जो आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हुई हैं, जो आपके कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं, दैट शुड बी ऑन द टॉप. एंड द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो आपकी 10th और 12th होती हैं, जिनको हम एकेडमिक बोलकर चलते हैं, वो आप अपने लोअर रैंकिंग पे रखेंगे. राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द एजुकेशन. एंड वन मोर थिंग, एजुकेशन डिटेल्स शुड बी प्रेफरेबली प्रोवाइडेड इन द टैबुलर फॉर्म. आप टेबल बना सकते हैं जहां पर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे. एजुकेशनल डिटेल्स को आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिवाइड भी कर सकते हैं. टेबल बनाइए, सबसे पहले मेंशन करिए कि आप कौन सी क्लास की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं. सपोज आई एम स्टार्टिंग विद 10th. Then in the second column you are required to provide the details of the university or the board, like I have specified over here, CBSE, right? Then in the third column you are required to provide either your percentage or year of passing. मैं यहाँ पर अपना percentage provide कर देती हूँ, like it is 98% suppose, right? And in the last column you have to specify your year of passing, like I have supposed written here 2007. राइट? अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करती हूँ, ये डिटेल्स तो आप फिल कर देते हैं, बट यहाँ पर गलती मत करना, आपने 2007 में 10th दिखाकर 2008 में 12th मत दिखाना. ऑब्वियसली आपको 10th से 12th में आने के लिए 2 years चाहिए. दिस 2008 शुड बी 2009 इन दैट केस. तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि आपका जो कोर्स, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे रेज्यूमे ड्राफ्ट कर रहे हो, वहां पर आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है, जितने टाइम में आपका कोई एक पर्टिकुलर डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, गैप ईयर्स आपने उतने ही मेंटेन करके चलने. राइट? दिस इज अबाउट योर एजुकेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस. हाउ टू गिव योर एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस भी हम डिसेंडिंग में स्टार्ट करते हैं. हम अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट को पहले और ओल्ड एम्प्लॉयमेंट्स को बाद में स्पेसिफाई करते हैं. करंटली मैं किस फर्म के साथ वर्क कर रही हूँ, दैट आई विल स्पेसिफाई ऑन द टॉप, और मैंने कहां से स्टार्ट किया था वो मैं नीचे स्पेसिफाई करूंगी. अगर आप चाहो तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी टैबुलर फॉर्म में शो कर सकते हो, जहां पर आप स्पेसिफाई करोगे कि आपने किस फर्म के साथ काम किया, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया, और लास्ट में ड्यूरेशन. ठीक है? ये आपने अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करना है. इसके अलावा आप अपने रेज्यूमे को एंड अप करते वक्त पर्सनल क्वालिफिकेशंस या अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट वर्ड यूज करूंगी, दैट आई फाइंड मोर एप्रोप्रिएट. What are your personal attributes, your hobbies, your interests, your sport participation or anything else that you like to do, वो आपने जरूर लिखना है. ठीक है? तो एक चीज और, जब आप रेज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं तो बहुत ऑनेस्ट चीजें लिखनी है. जनरली पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में, अपनी हॉबीज में आप कुछ भी लिख देते हैं. तो आपको वही चीज लिखनी चाहिए जो आपको आती है. आपने लिख दिया स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, बट आपको नहीं आती, तो यू शुड नॉट राइट दैट. ठीक है? आई लाइक रीडिंग बुक्स, बट आपको नहीं पसंद, मत लिखना. झूठ मत लिखना, वरना आपके साथ वही होगा जो हम आजकल अपने मीम्स में देख रहे हैं ना, कि बाढ़ आई हुई है, फ्लड इज देयर, पर्सन ने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ था आई लाइक स्विमिंग, और बॉस कह रहा है कि तैर कर आ जाओ. आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. तो डू नॉट राइट एनीथिंग रॉन्ग इन योर रेज्यूमे. राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स एंड द ऑनर्स. Any achievement you are having or anything you are honored with, that you can specify in your resume. ठीक है? Then we come to the references.
select references of the people who can comment and evaluate you well. References में उन्हीं लोगों के नाम specify करो that can be approached for your cross verification, who know you well, जिनको आपकी सारी क्वालिटीज पता हो, उन्हीं लोगों को रेफरेंसेस में मेंशन करना चाहिए. So these are the different headings that we use in our resume. कौन कौन सी headings की मैंने बात करी? सबसे पहले आपकी personal details, फिर आपका career objective, फिर आपका education, और फिर आपका work experience, personal attributes, achievements and honors, and then the references of the people who know you well, right? Moving on to the next. When it is time to update your resume, the very important thing, resume को कब आपको अपडेट करना है. मैं अपनी पहली जॉब के लिए जा रही हूं, मैंने अपना resume बना दिया, ठीक है. आज से 5 साल बाद मैं दोबारा से किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूं, तो मैं वो 5 साल पहले वाला resume नहीं यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरा वर्क एक्सपीरियंस 0 था. Now I am having the work experience of 5 years. उस टाइम मेरे में बहुत सारे skills नहीं थे, but now I am efficient on handling so many things. So I need to update my resume with the time. अगर आपने resume update नहीं किया तो आप अपने career को update नहीं कर पाओगे. What are the main things? What are the main reasons behind updating the resume? First of all, salary and way. ठीक है. वैसे तो एनवे वर्ड जेलस के लिए यूज होता है. जब आपको जेलस होने लगे ना अपने साथ वालों से कि इनकी सैलरी ज्यादा है और मेरी सैलरी कम, सोच लेना कि ये आपका रेज्यूमे अपडेट करने का टाइम है. और यहां पर हम कह सकते हैं व्हेन वी नीड हाइक इन अवर सैलरी, यू नीड टू चेंज योर रेज्यूमे, राइट. Pink slips in the air when you are looking that opportunities are there around you. Grab the one. How you will be able to grab the one? When you will be able to update your resume, right? When you are looking for the new career path, first of all, update your resume. Make your new resume before proceeding on a new path, right? Time flies. बहुत time बीत चुका है. This is the basic thing. You need to update your resume. When you are having the new priorities. When you are having the new priority, suppose पहले आप आउट स्टेशन वर्क करने में कंफर्टेबल थे, अब आप आउट स्टेशन वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो अपना रेज्यूमे अपडेट करो. पहले वाले रेज्यूमे में आपने मेंशन किया था कि यू आर कंफर्टेबल वर्किंग एट एनी आवर ऑफ द डे, बट नाउ यू वांट टू गिव टाइम टू योर फैमिली. चेंज योर रेज्यूमे, राइट. इसके अलावा यू वांट टू मूव ऑन, ठीक है. लेस इज मोर, वन ऑफ द फीचर ऑफ द रेज्यूमे, कि आपने कम से कम चीज बातों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कन्वे करनी है, वो आपके रेज्यूमे में होना चाहिए. आप मूव ऑन करना चाहते हैं वन जॉब से अनदर जॉब पे, ठीक है, तो वो भी आपके रेज्यूमे में होना चाहिए. ये पॉइंट अगेन फीचर में आ रहा है, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे. हाईटेक अपडेशन भी होना चाहिए, ठीक है. आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कोई चीजें आपको पहले नहीं आती थी, बट नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स नाउ, तो दिस इज द टाइम टू अपडेट योर रेज्यूमे. एंड अगेन व्हेन द पिंक स्लिप्स इन द एयर और व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, if you want to grab that opportunity, you are required to change your resume first of all, right? Now let us talk about the essentials of a good resume. ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन एक अच्छे resume में होना क्या क्या चाहिए. इसके बाद हम सीधा resume पर आ रहे हैं कि कैसा resume होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं essentials of a good resume. अब यहाँ पर कि एक अच्छा रेज्यूमे ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए. एक पॉइंट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रेज्यूमे प्रेफर करो 1 से 2 पेज का हो. आपने बुक नहीं लिखनी अपने बारे में, आपने अपने बारे में सिर्फ 2-3 पेज लिखने हैं, राइट. सबसे पहले आपके रेज्यूमे का साइज प्रॉपर होना चाहिए, यानी इट शुड बी लिमिटेड अप टू 1 or 2 पेजेस ओनली. एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड ट्रू. करेक्ट हेडिंग्स शुड बी देयर फॉर योर specifications, right? Your objective should be clear. Your educational details should be mentioned in a proper manner, and right format should be used. Correct grammar should be used, and it should be skillful. आपके resume में आपके सारे skills दिखने चाहिए. You are a skilled person. It should be mentioned in your resume. I am repeating over here. It should be limited up to 1, 2 or 3 pages. It should have the true and correct content about you. Give proper headings. Give your clear objective. Your educational details should be clearly specified. Use the right format.
no grammatical errors, and your skills should be clearly mentioned in your resume. Yes. Now here on the screen, I think you people can see the resume. I have added up an image over here. So it is just a specimen, right? सिर्फ एक स्पेसिमेन है जिसमें आप कंटेंट पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हेडिंग्स पर जाएंगे. देखो सबसे पहले है ऊपर मेरे पास योर नेम. आपने यहां पर नेम स्पेसिफाई करना है अपना. ठीक है. रेज्यूमे के बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं. हम यहाँ पर एक बेसिक सा ड्राफ्ट ले रहे हैं. आप इसमें कंटेंट we have written anything, but we are focusing on the headings only, right? First of all, you are required to give your name. You are required to give your address. You are required to give your telephonic number. You are required to give your mail address also. Why all these details are required? That if the employer is interested in you, he can contact you on these numbers, right? Next, what we are having, next heading we are having the profile. Which profile here it is? This is your personal profile. What is your name? What is your date of birth? What is your father's or spouse name? And what is your marital status, your age, your religion, your sex, your nationality? All these things will come under the heading your personal profile, right? Now see, in this resume, what I want to do, I want to highlight my achievements. मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ पर? अपने achievements को highlight करना चाहती हूँ, right? So what you can see here, मैंने अपने प्रोफाइल के बाद इमीडिएटली अपनी अचीवमेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरे पास कुछ अच्छी अचीवमेंट्स हैं और मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जिस बेसिस पर मुझे जॉब मिल सकती है. और ये स्पेस मुझे किसने प्रोवाइड किया था? ये स्पेस मुझे प्रोवाइड किया था कंबाइंड रेज्यूमे ने. ये स्पेस मुझे प्रोवाइड किया था फंक्शनल रेज्यूमे ने. क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे ने तो क्या कहा था? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलना है, राइट? बट फंक्शनल रेज्यूमे और हमारा जो कंबाइंड रेज्यूमे था वो हमें ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि हम जो चीज हाईलाइट करना चाहें हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले अपने मेजर अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूं. आई हैव पुट दैट हेडिंग, राइट? मैं अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना चाहती हूं. मैंने उस हेडिंग को एज इट इज यूज कर लिया कि हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट विल हेल्प मी टू गेट द जॉब रेदर देन प्रोवाइडिंग माई एजुकेशनल डिटेल्स ऑन द टॉप. तो मैंने यहां पर अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया. उसके बाद आई एम हैविंग द अदर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू समथिंग, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ. और उसके बाद अगर मैं और चीजों को ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, और करनी पड़ेंगी. एक बार के लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कितने क्वालिफाइड पर्सन हो, आपकी और क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपको क्या लैंग्वेजेस आती हैं, राइट? तो ये सब चीजें आप अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन करोगे, बट जो आपका कंबाइंड रेज्यूमे है वो आपको ये सारी डिटेल्स हाईलाइट करने का स्कोप प्रोवाइड करता है. अब यहां पर हम बात करते हैं कि हम इसके एड ऑन में यहां पर और क्या क्या ले सकते हैं. देखो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो जरूर स्पेसिफाई करनी है. ठीक है. क्वालिफिकेशंस के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि आप टेबुलर फॉर्म में अपनी क्वालिफिकेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. क्वालिफिकेशंस के बाद यहां पर आपने एक्सपीरियंस पहले मेंशन कर दिया. अगर आप चाहो तो क्वालिफिकेशंस के बाद ही आप अपने एक्सपीरियंस को स्पेसिफाई करें. ठीक है. एक्सपीरियंस के बाद यू कैन राइट अबाउट योर हॉबीज ऑल्सो. ठीक है. हॉबीज के बाद यू कैन राइट अबाउट योर हॉबीज से पहले या हॉबीज के बाद, जहां पर भी आपको सुटेबल लगे. आप अपने अचीवमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इस रेज्यूमे में भी हमने अचीवमेंट्स पहले स्पेसिफाई कर दिए तो हम उसको यहां पर दोबारा नहीं लेंगे. इसके अलावा आप यहां पर लैंग्वेजेस नॉन भी लिख सकते हो. ठीक है. लैंग्वेजेस नॉन के अलावा आप इसके अंदर अपनी एक डिक्लेरेशन भी देते हो लास्ट में. एंड व्हाट डू यू राइट इन दैट डिक्लेरेशन कि आप जो भी इंफॉर्मेशन इस रेज्यूमे में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सच है, आपने उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखा. तो आप क्या लिखेंगे डिक्लेरेशन में? आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्पेसिफिकेशंस गिवन अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. जितना मुझे पता है मैंने आपको सच बताया है. ठीक है. तो आप यहाँ पर किस में लिखेंगे वो सब चीजें? डिक्लेरेशन में, दैट ऑल द स्पेसिफिकेशंस गिवन अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. इसके अलावा कौन सी डेट को आप रेज्यूमे दे रहे हैं, कौन सी प्लेस पर आप रेज्यूमे दे रहे हैं. ठीक है. ये चीजें भी आप अपने रेज्यूमे में लास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं. सो व्हाट ऑल शुड बी देयर इन योर रेज्यूमे? योर नेम, योर फादर्स नेम और स्पाउस नेम, योर एड्रेस, योर मेल आईडी, योर कॉन्टेक्ट नंबर. ये तो हो गया आपके पर्सनल डिटेल. देन यू विल स्पेसिफाई योर क्वालिफिकेशंस, देन यू विल स्पेसिफाई योर वर्क एक्सपीरियंस, देन यू विल स्पेसिफाई योर अचीवमेंट्स, योर हॉबीज, any
additional language is known, then you will give your declaration, then date and then place. एक हेडिंग बीच बीच में कहीं जगह पे सैलरी एक्सपेक्टेड भी आ जाती है. अगर आपका एक फिक्स स्केल है कि मैं 35,000 से कम पे तो वर्क करूंगा ही नहीं, मैं 50,000 से कम पे तो वर्क मुझे करना ही नहीं है, तो आप वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दीज आर माय एक्सपेक्टेशंस फॉर सैलरी. बट अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करके ऊपर नीचे वर्क करने में अग्री हूं, सेटिस्फाइड हूं, तो आप वहां पर सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या कर देते हो, नेगोशिएबल. क्यों नेगोशिएबल आप वहां पे स्पेसिफाई करते हो? क्योंकि आपके पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी इज गोइंग टू ऑफर द सैलरी स्केल बिटवीन 35 to 65,000. तो इस बीच में आपको लगता है कि मैं किसी भी सैलरी पे वर्क कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, तो देयर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर स्केल इन योर रेज्यूमे. सो दिस इज हाउ यू ड्राफ्ट द रेज्यूमे. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. आपको टाइप्स पता चल गए रेज्यूमे के. क्रोनोलॉजिकल, that is conventional style, then functional, that provide you the scope to highlight your skills. Then we have covered up the combined resume, जिसके अंदर आप दोनों तरीके की चीजों को कवर अप कर सकते हो. तो इसी के बेसिस पे आपके जो रेज्यूमे ड्राफ्टिंग का स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा. So you need to have the practice, you need to explore the things, explore the different sites, explore the different books where you can get the variety of these things. You will get a variety of resumes जिनके styles जो हैं time to time update होते रहते हैं. So keep practicing, keep learning. Till then, thank you and have a good day.